صحیح ہے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ اور السلام علیکم سب میرے خاندان والوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری ماؤں، میرے بڑے بزرگ. آج میں ویڈیو بڑی مشکل میں تو نہیں، بڑی آزادی میں یہ کر رہا ہوں، اپنے آپ کے روحانی طور پر بھی اور جسمانی اور قلبی طور پر بھی اور نفسیاتی طور پہ بڑا کھل کے بات کر رہا ہوں. یہ تمہارے جو پیر ہیں نا، پیر آفتاب حسین شاہ جیلانی صاحب، جو پتہ نہیں کتنی مرتبہ MNA ہوئے ہیں، اور اس کا بیٹا جو کبھی جیت ہی نہیں سکا، اور ابھی پیر نور شاہ بڑا لاڈ والا آدمی، پیر عزت شاہ اس سے بڑا، یہ سارے سب چور ہیں. اصل میں ہماری جو بنیاد ہے یہاں پہ میپر کھاد میں، وہ پرانوں سے آتی ہے. پیر عظیم شاہ کا گوٹ آپ نے سنا ہوگا، جہاں پہ ہماری زمینیں بھی ہیں. وہاں پہ سائیں حیدر شاہ تھے، جو بہت بڑے بزرگ اور اولیاء تھے. ان کی بیٹی سے میرے پردادا نے شادی کی. میرے پردہ سائیں جہان شاہ، پیر جہان شاہ، بہت بزرگ اور قانون دان اور جورسپروڈنس کے ماہر وہ تھے، پڑھے لکھے، تعلیم یافتہ، تزکیہ کیا ہوا، کیونکہ ان میں تو روحانیت تھی. تب ایسی کوئی میل و میلان نہیں تھی، تو وہ جلدی اللہ کی طرف چلے گئے، رحلت پا گئے. اور میرے دادا صاحب پیر غلام رسول شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بہت چھوٹی عمر کے تھے، 2 سال کے، تب وہ اپنے باپ کے سائے سے محروم ہو گئے. محروم کیا ہوا، اللہ نے بس یہ ایک آزمائش رکھتے ہیں سکھانے کے لیے، انسان کو آگے چلنے کے لیے. ان کے اقدار اور ویلیوز اور پرنسپلز الگ تھے. آج کل کے یہ تمہارے ٹھگ بیٹھے ہیں، پیر آفتاب اور پیر حسن شاہ اور پیر نور شاہ اور عزت شاہ، پیر تو کہلاتے ہیں. ان سے مطلب تو پوچھو بھائی، پیری مریدی کا اصل میں مطلب کیا ہے؟ پیر کیا ہوتا ہے؟ مرشد کیا ہوتا ہے؟ مرشد کا مطلب ہے رشدہ عربی میں، کہ جو سیدھی طرف لینے والا، اچھی طرف لینے والا. ارشدہ اس سے نکلتا ہے، مرشد اس سے بنتا ہے. اور مرید وہ ہوتا ہے جو چاہتا ہے کہ میں سیدھا راستہ پاؤں، رہنمائی پاؤں، کسی کا ساتھ پاؤں، ایسے بڑے بزرگ کا، مرشد کا. تو وہ تھے وہ ہمارے بڑے. ابھی تو سارے شیطان کے اور زرداری کے، فریال کے، بلاول کے، پتہ نہیں کس کس کے مرید ہیں. ان کی بینچز میں بیٹھتا ہے پیر آفتاب اور کہتا ہے میں ان کے ساتھ نہیں ہوں، میں اپنی عاقبت بناتا ہوں. یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک طرف اللہ کا نعرہ لگاؤ اور دوسری طرف شیطان کی بینچوں میں بیٹھے ہو؟ کس طرح ہو سکتا ہے؟ مجھے یہ بتائیں. آپ اپنے ضمیر کو جھنجھولیے. ہمارا خاندان بہت پرانا ہے، 1150-1200 سال پرانا ہے. پیر عبد القادر جیلانی سب نے پڑھا ہوگا، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ وہاں سے جیلان سے جلی ہے ایران، اور تب میسوپوٹیمیا تھا اس کا نام. ایران، عراق اور بہت سے ملک ساتھ تھے، سلطنت تھی. تو وہاں سے انہوں نے ہجرت کی. ان کو خواب میں ایک آئی کہ آپ تعلیم کے لیے وہاں جائیں. تو پتہ نہیں اب یہ ریکارڈز ہے، 16 سال یا 18 سال کی عمر میں انہوں نے ہجرت کی وہاں، اور وہاں انہوں نے 38 سال محنت کی. تعلیم، زہد، روحانیت، صوفیزم، مسٹسزم، یو نیم اٹ. پھر 51 سال کے بعد وہ
आ गए प्रैक्टिकल लाइफ में। अब आप समझे जो 38 साल इस फील्ड में रहा है अल्लाह और उसके रसूल की, काल अल्लाह व काल रसूल, वो उसको डर लग रहा था कि मैं किस तरह दावा करूं, लोगों को रहनुमाई में लाऊं। मैं रहनुमाई पे हूं, अपने ऊपर वो सवाल उठा रहे थे। बहुत बड़ी बात होती है एक औलिया अल्लाह की ये, जो अपने ऊपर वो डाउट करे, शक करे कि मैं इस काबिल नहीं हूं। तुम्हारे ये चारों ठग जो अभी बैठे हैं, मैं क्यों नहीं आता मी प्रकाश? मुझे पता है मैं आऊंगा, इनका मुकाबला मुझसे होगा, या तो ये तबाहोंगे या तो मैं तबाहूंगा। मुझे शराबी वगैरह कबाबी कहते हैं, कौन नहीं है ऐसा जो सियासतदान शराबी नहीं है, कबाबी नहीं है? कौन ऐसा इंसान है आजकल की दुनिया में जो नहीं है? इसलिए मुझे इतने टेंशन दिए हैं मेरे बाप ने, जो जाहिल तरीन इंसान है, इंसान तो नहीं कह सकते, जानवर है। तुम्हारी नजर में लग के आएगा कि बड़ा अच्छा इंसान है, अखलाक से पेश आता है। अखलाक सब कुछ नहीं होते, जाहिरी नीयत पे है। रसूलुल्लाह की हदीस है ना, इन्नमल अमालु बिन्नियत, सारे अमाल का दारोमदार नीयत पे है। जब अमाल कर दिया अच्छा और नीयत बुरी तो फिर फायदा क्या है? चलो उससे आगे चलते हैं। फिर मेरे बड़े जद्दे अमजद आए, साईं इनायत शाह, वहाँ से बगदाद से जीलानी, वो आए नसरपुर में। उन्होंने वहाँ पे आके अपना मकाम और ठिकाना बनाया। वहाँ पे आके कादियों से शादी की, वहाँ से उनको बेटियाँ हुई, कोई नरीना औलाद नहीं हुई। तो उन्होंने मुराकबा कहते हैं, जैसे क्या टेलियोलॉजी कहते हैं, टेलीस्कोप, मतलब एक जरिया है रूहानी, उनको बुलाया। शाह कासिम जो मेरा नाम है, शाह कासिम इतने 550 साल पहले किसी ने नहीं रखा। मेरे दादा की ये चाहत थी और मेरी दादी दोनों औलिया अल्लाह, उनकी चाहत थी कि इस बच्चे पे ये नाम रखा जाए, क्योंकि उनमें बहुत जलालीपन भी था और कादरीपन भी था और बहुत सिफतों के मालिक थे। वो भी पबन शरीफ में, हैदराबाद से कोई 20-25 किलोमीटर दूर। तो वहाँ से उनकी औलादे फिर नसरपुर से बब्बन से फिर थाना बुलाकान, फिर बीबर खास, फिर और बहुत सी जगहें जग गई। असल में बात करने का ये मकसद है कि आजकल दुनिया बिल्कुल भटकी हुई है। उसको राह रास्त देने का असल जिस्मानी एक्सटीरियर जिसको कहते हैं, और रूहानी इंटीरियर कल्बी, और कल्ब जो है मकीन है रूह का। रसूलुल्लाह की हदीस है ना, जब आदमी गुनाह करता है तो उसके दिल पे काला धब्बा आ जाता, इतने गुनाह हो जाते हैं जब पूरा दिल कवर हो जाए काले धब्बों में। फिर उसको बहुत मुशक्कत करनी पड़ती है रूहानी, तो उसको हटाए। तो असल बात ये है कि ये अपने नाम का फायदा लेके ये पीर आफ्ताब जो ठग गए पहले नंबर का, और पीर हसन जाको तो कुछ आता ही नहीं है। सारी जिंदगी मैंने पढ़ाया, लंदन हम साथ गए, वहां पे मैंने साथ दिया, जिंदगी में साथ दिया, और इधर शाह नूर शाह को भी मैंने पढ़ाया, सब कुछ किया। चाचा जानी मेरे बहुत प्यारे थे, अभी भी हैं। उन्होंने कहा कासिम शाह इनको पढ़ाओ कराची में। मैंने कहा चाचा भेजे, पढ़ाता हूँ। तो उनको ए लेवल ओ लेवल, फिर उन्होंने डिग्रियाँ की, सब कुछ मैंने खिदमत की जो मेरे पहुंच में है। मैं ये नहीं कहता कि मैं कोई वली हूं या संत हूं, मगर मैंने सबकी खिदमत की। शादी कराई अपने भाई की, नूर शाह और मेरी बहन ने आपस में शादी हुई, उनकी कराई। जो हुक्म आता था मैं करता था।
اب یہ नाशुक्र मेरी उस फजीलत या अमल को ये मानते ही नहीं है। कहते हैं कासिम शाह ने अय्याशी की। कहाँ अय्याशी की? अगर मैं करता तो मैं साल में 6 से 8 करोड़ रुपए कमाता था। आज से 15 साल पहले कितनी जमीनें ले लेता, कितनी प्रॉपर्टियां ले लेता। मगर मुझे दुआ थी अपनी दादी की और दादा की कि तुम्हें जीलानी खानदान की, पीर अब्दुल कादिर जीलानी के खानदान की खिदमत करनी, जो मैं कर रहा हूँ अभी तक भी। मगर मैं गाँव इसलिए नहीं आता कि मेरे बाप को और मेरे भाई को धचका न लग जाए, क्योंकि मेरी ज़बान बहुत तीखी है, तलवार की तरह, चाकू की तरह। मैं इनकी मुनाफकत को नहीं मानता। मैं 50 साल हो गया हूँ। ये आदमी मेरा भाई है मुश्ताक, ये आपको कभी 5-7 मिनट की मेरी लाइब्रेरी दिखा देगा कि क्या क्या किताब नहीं है और क्या क्या मैंने नहीं पढ़ा। तो ये चीजें हैं भाई, जिंदगी में चल रहा है। अब हमारी मुल्क और इकोनॉमी कहाँ पहुंची है? पेट्रोल 55 रुपए बढ़ा दिया और अभी चुप किया है क्योंकि ईद है, फिर बढ़ा देंगे। इनके बाप में हिम्मत है? IMF की मर्जी है, ज़ायनिस्ट की मर्जी है, जो जूस की एक बहुत बड़ी लॉबी है। वो कहेंगे इतना बढ़ा दो तो ये बढ़ा देंगे। ये तो नौकर है और पीर आफ्ताब इनके नौकरों का भी नौकर है और वहां बैठता है। मुझे क्या कहता है? मैं कहता हूँ तुम ट्रेजरी बेंचेस पे बैठे हो हुकूमत की। कहता है मैं नहीं बैठा हूं, मैं अपना काम कर रहा हूं। देखो तो सही पॉलिसी कहते हैं चूतिया बनी। खुद हुकूमत में शामिल है, पीपल्स पार्टी का एमएलए है। अगर पीपल्स पार्टी ऐसा रवैया रख रही है तो इस आदमी का रवैया तो वही है और तो कुछ भी नहीं है। सबको चूतिया बना के बैठा हुआ है। पूरी दुनिया को आपको भी पता है ये बना रहा है, मगर आप इसकी कहते हैं ना विलिंगली इसकी इज्जत कर रहे हो। ना करो, उसके मुंह पे पूछो कि क्यों इतनी कीमत बढ़ाई। हम गुजारा नहीं कर सकते, इन पैसों में मैं कर सकता हूं। शुक्र है मेरे दादा ने मुझे इतनी दौलत दे चुका है कि मैं कर सकता हूं। मगर एक आम इंसान जो 15,000, 20, 25, 30, ज्यादा से ज्यादा 50 कहाँ पूरत कर सकेगा अपने बच्चों की, अपने कुंडब की, अपने फैमिली की? किस तरह होगा ये सारा सिलसिला? ये ठगियों में ही चलेंगे हम, रिसेप्शन में, और चूतिया बना रहे हैं हमें ये पीर आफ्ताब जैसे बड़े बड़े और इनके साथ जो हैं बड़े फ्यूडल जो कमीने अपने गोट के सरदार हैं, चूतिया बना रहे हैं लोगों को। वो बेचारे गरीब हैं, उनके पास कमाने के लिए पैसा नहीं है। कहाँ चल सकेगा भाई? इस मुल्क को अल्लाह से दुआ करो। रमजान गुजर गया, शैतान बनता, फिर तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूंसी में 4 शैतान उठ गए, पीर आफ्ताब, पीर हसन शाह और सबसे बड़ा पीर इज़्ज़त शाह और पीर नूर शाह। कमीने हैं पहले नंबर के, कुछ भी फायदा नहीं देंगे। अब इससे ज्यादा मैं बात नहीं करता। आप समझे, सोचे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना एमएलए ना MP ना कोई इक़्तिदार। मुझे आपकी फलाह और बहबूद चाहिए, जो मेरे दादा ने, पीर गुलाम शाह, रामलाल ने सिखाई और मेरी दादी ने सिखाई, और जहाँ से मेरी लिनिएज हेरिडिटरी आ रही है, जहाँ से मेरी लाइन आ रही है। क्या कहें आगे? बस रोने का मकाम है। ऐसे कमीने जिलानी खानदान में बैठे हुए धोखा दे रहे हैं लोगों को, और लोग खुशी खुशी से उनसे ईद मनाने आते हैं। किस हिसाब से क्या दे दिया उन्होंने अपनी मिल्कियत में से कोई अस्पताल बनाया, कोई स्कूल बनाया,
کوئی اور لوگوں کے لیے ان کے 2-3-4 گاؤں ہیں ان میں کوئی سہولت دی, کچھ بھی نہیں دیا. آپ جا کے دیکھیں وہاں جا کے. اکڑ میں زندگی گزار رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں کہ دوسروں کو دبا کے ہم سرخرو ہو جائیں گے اللہ کے آگے. اللہ ایسے پادر مارے گا, ایسے بوچڑے مارے گا, ان کو یاد رکھیں گے یہ. اللہ حافظ. بند کر.